Welcome students. In this video we are going to learn another algorithm which follows the greedy strategy. It's called as Distrust's algorithm. So this video is will just discuss the introduction of Distrust's algorithm. What is the purpose of this algorithm? What is its aim? And why it is used for and where it is used. Okay. So some few introductory points we are going to discuss in this video regarding Distrust's algorithm. So this algorithm is used mainly to find a shortest path tree, to design a shortest path tree. Okay, single source shortest path tree. I'll explain what we mean by a shortest path tree very soon. Okay, one important thing to be noted about Distrust's algorithm is it can be applied to directed graphs only. Directed graphs are also called as digraphs. What are directed graphs? Graphs in which the edges have some directions also. Okay, so in previous videos we have seen some weighted graphs, but we have seen that the edges were not directed. Okay, but here we are going to use those weighted graphs in which the edges have some directions also. Such type of graphs are called as digraphs or directed graphs. Okay, one more important thing to be noted is we can apply this algorithm, that is Distrust's algorithm, to find the shortest path tree only when the edges are positive value. Okay, if the weights of the edges are of positive value, only then we can apply the Distrust's algorithm. So then what can we do if the weights are negative? So for that we have a different algorithm, Bellman-Ford algorithm, that we are going to discuss in some other video. Okay, so remember that Distrust's algorithm can be applied only in digraphs where there are positive edges. Okay, so I'll explain the purpose of this algorithm first, and then we'll see what are the things that we are going to use in this particular algorithm. Okay, so suppose this is a weighted digraph. Okay, I have drawn a weighted digraph here. Okay, so you can see that there are in total we have 5 nodes or vertices in this particular graph. We can consider any one of the node as a source node. Okay, out of the 5 nodes that we have, we can consider any one as the source node. Say for example, I am choosing the node S as the source node. Now what is our aim? Our aim is to design a shortest path tree. So then what is a shortest path tree? A shortest path tree, in a shortest path tree, we try to find out the path of all the nodes फ्रॉम द सोर्स नोड से एक पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है. ठीक है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश होती है शॉर्टेस्ट पाथ ट्री में. तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री में हम एक सिंगल नोड को सोर्स नोड कंसिडर करते हैं और उस नोड से बाकी नोड तक पहुंचने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमें फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, तो डिस्ट्रस्ट एल्गोरिथम किस तरह से हमें हेल्प करेगा ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्री फाइंड आउट करने के लिए, वही हमें देखना है. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए. आई हैव ड्रॉन सम पाथ ट्रीज. देखिए बहुत सारे पाथ ट्री बन सकते हैं, यानी एक सोर्स से बाकी नोड्स तक पहुंचने के लिए तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं. अगर ये मेरा गिवन ग्राफ है और मैंने एस को सोर्स नोड कंसिडर किया है, यानी कि मेरे सारे जो पाथ है वो नोड एस से स्टार्ट होंगे और मुझे एस से ए रीच करना है, एस से सी को रीच करना है, एस से बी रीच करना है, एस से डी नोड तक रीच करना है. ओके, और इस तरह से मुझे एक ट्री बनाना है. तो ये एक पर्टिकुलर वे है. ठीक है, दिस इज वन पाथ ट्री. ट्री का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्री में कोई लूप्स नहीं होनी चाहिए. तो ट्री ग्राफ का ही एक सबसेट होता है विच हैज नो लूप्स. ओके, तो ये एक पर्टिकुलर पाथ ट्री है. देखिए यहाँ पे मैंने एस से ए जाने का ये वाला पाथ चूज किया है. एस से सी हम ऐसे जा सकते हैं. ठीक है, वी कैन रीच फ्रॉम एस टू सी वाया दिस पाथ. हम एस से बी ऐसे रीच कर सकते हैं विद अ कॉस्ट ऑफ 100. एस से डी रीच करने के लिए हम 30 का कॉस्ट यूज कर सकते हैं. तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है. यहाँ पर भी मैंने एक पाथ ट्री बनाया है. मैंने इसको अभी तक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री नहीं बोला है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ट्री में सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने चाहिए, स्मॉलर डिस्टेंसेस होने चाहिए. सोर्स से हर नोड तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट कॉस्ट होना चाहिए. अगर ऐसा है तो फिर वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कहलाएगा. सो आई डोंट नो वेदर दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ ट्री और नॉट. सो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ पाथ ट्री लिखा है. और पॉसिबिलिटीज क्या है, देखिए ये तो मैंने एक पॉसिबल पाथ ट्री बनाया है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे पाथ ट्री हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक और पाथ ट्री बनाया है. हम एस से ए जा सकते हैं
देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पार्ट ट्री एंड दिस पार्ट ट्री। यहाँ पे हम एस से बी डायरेक्टली रीच हुए थे विद द कॉस्ट ऑफ 100, लेकिन यहाँ पे हम देखिए एस से बी डायरेक्टली रीच नहीं हो रहे हैं। एक और पाथ अवेलेबल है ग्राफ में, कहाँ से कहाँ तक, हम पहले एस से ए जा सकते हैं, देन ए टू सी जा सकते हैं, एंड देन सी टू बी जा सकते हैं। अगर हम ऐसा ये वाला पाथ फॉलो करें तो कॉस्ट कितना होगा, 10 + 50 + 10 दैट इज 70। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट कितना था, एस से बी जाने का कॉस्ट कितना था, 100। हालांकि इस पार्ट ट्री में आप देख सकते हो कि कॉस्ट एस से बी जाने का कॉस्ट कितना है, सिर्फ 70 है। तो ये तो ज़्यादा शॉर्टेस्ट हो गया। सो द पॉइंट इज कि ऐसे बहुत सारे पॉसिबल पाथ्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा पार्ट ट्री बनाना है जहाँ पे सोर्स नोड से हर नोड तक पहुँचने के लिए हमें शॉर्टेस्ट वैल्यूज ही मिले। ठीक है, ये एक और इंस्टेंस मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो। नाउ सी हियर इन दिस पर्टिकुलर पाथ ट्री, हम अगर मुझे एस से सी तक पहुंचना है, ठीक है, मुझे एस से सी तक पहुंचना है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा पाथ चूज किया, फर्स्ट पाथ ट्री में मैंने एस से सी तक रीच करने के लिए आई हैव गॉन फ्रॉम एस टू ए फर्स्ट एंड देन ए टू सी। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया मेरा, 10 + 50 दैट इज 60। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर भी एस से अगर सी जाना है तो टोटल कॉस्ट कितना है, एस से ए 10 का कॉस्ट और ए टू सी 50 का कॉस्ट, यानी टोटल 60 का कॉस्ट। अगर मैं ये पाथ ट्री में देखूं, अगर यहाँ पे हम एस से सी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो पाथ टोटल कॉस्ट कितना है देखते हैं। एस टू डी अगर हम पहले जाए तो उसका कॉस्ट 30 होगा, एंड देन डी से फिर अगर हम सी पर पहुंचे तो कॉस्ट होगा 20, दैट मीन्स 30 + 20 द टोटल कॉस्ट इज 50 ओनली। तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम एस से सी कम कॉस्ट में पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कई पॉसिबिलिटीज होती है जहाँ पे हम सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुँचने के लिए बहुत सारे पाथ्स हमें अवेलेबल मिल सकते हैं, और क्योंकि बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल होते हैं इसलिए बहुत सारे अलग अलग पाथ ट्रीज बन सकते हैं। लेकिन हमारा एम क्या था, हमारा एम था एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाना विद द हेल्प ऑफ डिजरास एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाया है, आप देख सकते हो। देखिए हम एस से ए रीच कर सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ 10 ओनली। ओके, एस से बी पहुंचना है और हमें कम से कम कॉस्ट देखना है। देखिए यहाँ पे हमने एस टू बी हम 100 कॉस्ट में गए, यहाँ पर हम एस टू बी के लिए कितना कॉस्ट लगा, 10 + 50 + 10 यानी 10 + 50 + 10 दैट इज 70 का कॉस्ट लगा। अगर ये वाला एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर एस टू बी जाना है तो कितना कॉस्ट लगा, 30 + 60 यानी कि 90 का कॉस्ट लगा। अब कमिंग टू दिस डायग्राम, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एस टू डी जाने का कॉस्ट कितना है। सी, पहले हम एस टू डी जा सकते हैं, फिर डी टू सी एंड देन सी टू बी, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 30 + 20 + 10 यानी कि 60। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 का कॉस्ट लगा एस टू बी पहुँचने के लिए, यहाँ पे एस टू बी पहुँचने के लिए 70 का कॉस्ट लगा, यहाँ पे एस टू बी तक पहुँचने के लिए आपको 90 का कॉस्ट लगा। हालांकि यहाँ पे आपको एस टू बी तक पहुँचने के लिए सिर्फ 60 का कॉस्ट लगा। तो दैट मीन्स आप देख सकते हो कि ये वाला जो ट्री है, पाथ ट्री है, ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे रहा है एस टू बी जाने के लिए। नॉट ओनली एस टू बी, आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में एस से कोई भी नोड एस टू ए जाने का भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही मिला है, एस टू डी जाने के लिए भी यू हैव गॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, एस टू सी जाने के लिए भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे मिला है, और एस टू बी जाने के लिए भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिला है। तो ये पाथ ट्री जो है जहाँ पे सोर्स से बाकी चारों नोड्स तक पहुँचने के लिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है, ये वाला ट्री होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री डिस्टेंस एल्गोरिथम की मदद से कैसे फाइंड आउट किया जाए, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक ही स्टेप में हम ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो एक हमें कुछ पासेस से गुजरना होगा, हमें कुछ आइटरेटिव ऑपरेशंस करनी होगी, और फाइनली हम एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बना पाए। नाउ रियल लाइफ में देखें तो इसके क्या एप्लीकेशंस है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाने की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है। शॉर्टेस्ट पाथ ट्री की ज़रूरत पड़ सकती है नेटवर्किंग में। सबसे मेन एग्जांपल अगर हम देखें नेटवर्किंग में, आपको पता है कि कोई भी दो नोड्स, कंप्यूटर नोड्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, बीच में राउटर्स होते हैं। ओके, और राउटर्स का काम होता है पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करना। तो राउटर्स कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से नोड्स को हम वो पैकेट फॉरवर्ड करें, अगर बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं, तब वो राउटर में वो मैपिंग करने के लिए कि पैकेट को कौन से डायरेक्शन से, कौन से पाथ से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, सो दैट वो डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच पाए, तब
वहाँ उस केस में भी हम कुछ राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, रूटिंग एल्गोरिदम्स या राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्ट्राज एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ओनली दैट, टेलीफोन नेटवर्किंग की बात हो या तो फिर और भी कोई जहाँ पे भी कनेक्टिविटी, गूगल मैप्स की अगर आप बात करो, जहाँ पे आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुँचना है और आप चाहते हो कि कम से कम टाइम में आप वहाँ पे रीच कर पाए, तो वहाँ पर भी ये SPT डिस्ट्राज एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जा सकता है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ from a source to a destination location. Okay, so I hope you have understood what is the aim or purpose of distrust algorithm. In the next video we are going to see how to solve distrust algorithm given a weighted graph, how to find the shortest path shape. That's all for this video. We will see you in the next video.